ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھیں کہ پہلے کچھ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی دہرائی کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ مڈ کوئز کی تیاری کے لیے ایک تھوڑی سی ٹائم میں ہم فٹافٹ جتنا ہم نے سبق پڑھا اس کی ریویژن کا کریں گے، تاکہ جتنا ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ آپ کی ذہن میں تازہ ہو جائے، اور کسی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا تو وہ بھی اس سے کچھ فائدہ ہو سکے. آپ اپنے مائکس کو میوٹ رکھیے گا، جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو کر کے تو اس کو آگے آنسر دیجیے گا. اب ہم اس کی جلدی جلدی دہرائی کریں. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ہم اس کو اور قرآن سے آسان طریقے سے اور نماز کے ذریعے سے ہم اس کو سیکھتے ہیں. اور اس میں ہم جو چیز سیکھتے ہیں وہ ٹی پی آئی. آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ ٹی پی آئی اسٹینڈس فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جی بالکل ماشاء اللہ، اس میں ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں ہم جلدی سے کورس کے مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں کورس کے اس کے مقاصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، قرآن کو زندگی میں کیسے لانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور تبھی بول چال کرنے جملے اس میں سیکھنے. آپ نے اس کو یاد رکھنا کہ اس میں ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن پاک میں 41,000 دفعہ آئے. اور نماز سے ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا دوسرا لفظ جو ہے وہ اذکار نماز میں سے. اور اس کے علاوہ ہم روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعا اور اس کے ماحول میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تعوذ. قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو شیطان ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹاتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، شیطان سے خود کو بچانا ہے. اعوذ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ بولتے جائیں. میں پناہ میں آتا ہوں. میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ پناہ میں آتی ہوں ہو گئے اللہ کی. پناہ میں آتا ٹکڑے بتائیں. بی کے باللہ کے ٹکڑے کتنے؟ 2 ہے. وہ ہے ماشاء بی اللہ. اور من کا مطلب آپ سب کو بہت اچھی طرح سے من پتہ ہے، سے. شیطان اور رجیم. الرجیم کا مطلب جو مردود ہے. مردود. مردود. اچھا، اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تقریباً 12 عادات سیکھی ہیں تعوذ سے، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ سے. سب سے پہلی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پناہ مانگنی ہے، سیفٹی فرسٹ. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے تاکہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے. اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے. یہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے اور یہ اتنی عام ہے کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسمی، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے. کون کون سے؟ اسم نام. بی اور اسم. رحمان جو مہربان ہے اور رحیم. تو دوسری عادت جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ بسم اللہ سے، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. تیسری عادت ہم اسی سے سیکھتے ہیں الرحمن اور رحیم سے، اللہ کے بارے میں اچھا کیونکہ وہ رحمان اور رحیم. الحمد. الحمد کے کتنے معنی ہیں؟ الحمد تمام تعریفیں اور تعریفیں اور شکر. للہ کے ٹکڑے کریں ذرا. للہ 2 ہے. اللہ دی مطلب لی اور اللہ. ماشاء اللہ زبردست. اور العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا. اچھا، اس سے ہم الحمد سے ہم نے ایک عادت سیکھنی ہے کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ تمام اللہ ہم ہر وقت دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں. اور ہم کا دوسرا معنی ہم نے پڑھا شکر ہے. اس سے ہم نے عادت نمبر 5 سیکھنی ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر کریں. الرحیم. الرحمن کا بہت مہربان. اور الرحیم رحم کرنے والا. الرحمن اور الرحیم میں مجھے فرق کون بتائے؟
رحمان بہت رحم کرنے والا، رحیم بہت شدت سے رحم کرنے والا ہے. الرحمن، ایک الرحمان میں کا بہت مطلب ہے زیادہ جوش آیا ہے اور ایک میں تسلسل ایسا ہے. رحمان کا مطلب شدت سے مہربان، اور رحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. کنٹینیولی مرسیفل. جی ماشاء اللہ، کنٹینیوسلی مرسیفل. اور اس سے ہم عادت نمبر 6 سیکھتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کیا. ہم نے اس میں پڑھا رب، تو رب کے معنی ہے پالنے والا، جو اللہ یہ کرتا ہے، ان کے مالک ہے، وہ ہمارا حاجت روا ہے، نعمتیں دیتا ہے، جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو وہی نکالتے ہیں، ہر چیز ہر نعمت دینے والا ہے. مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے. مالک. اچھا، اس میں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ مالکی اس کا مطلب مالک ہے، لیکن اگر مالک کا آ جائے، تینوں پہ زبر آ جائے، فرشتہ جیسے ملک الموت، تو مالکی جو اگر اس کا نہیں آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. تو آپ نے دھیان سے زیر زر سے بہت فرق ہوتا ہے، تو دھیان سے کرنا. یوم کا مطلب دین کے دو معنی کیا ہے؟ دین کے دو معنی بدلہ، گزارنے کا طریقہ. بدلہ اور نظام زندگی، یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. بدلہ یعنی کہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا. اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں مال کی یوم الدین سے، کہ ہر کام جو ہے وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، وا ایاک، اس کے ٹکڑے کریں. 3 ٹکڑے، وا اور یا ہی کا تیری، 3 ٹکڑے. 3 ٹکڑے بنیں گے، وا اور یا صرف کا تیری. ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے بنیں گے. نستعین، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نعبد اور نستعین دونوں نون سے شروع ہوتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے. اس میں آپ ہم عبادت ذہن میں رکھنی ہے، ایاک نعبد کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو، اور ایاک نستعین کہ ہر کام میں اللہ مدد چاہیے. صراط المستقیم، اہدنا، اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہمیں ہدایت دے. 2 کون سے؟ ہدایت اہدی ہدایت دے، اور نہ ہمیں. الصراط راستے، اور المستقیم راستہ سیدھے راستہ. اس میں دیکھیں الصراط کے ساتھ بھی ال لگایا گیا اور مستقیم کے ساتھ بھی. یہاں پر ال کا کیا مطلب ہے؟ ال کا مطلب دونوں خاص راستہ، خاص. ال جو ہے وہ اس کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہدایت دے ہمیں. ہدایت کی جو ضد ہے وہ ضلالت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ اگلی کام میں اللہ سے ہدایت مانگی جائے، اللہ سے ہدایت دی جائے. اور پھر الذین انعمت علیہم، آپ نے انعام نام کیا تو نے، علیہم، علیہم ان پر ان پہ. عادت نمبر 11 کہ ہمیشہ اچھے ماڈل اور نمونوں کے طریقوں پر چلنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم، غیر کمانی غیر نہ اور المغضوب غضب کیا گیا. غضب کیا گیا. ضالین، ضالین جو گمراہ ہوئے. عادت نمبر 12 ہے کہ برے ماڈل اور نمونے سے دور بھاگنے کی دعا کی جائے. اچھا، اب مجھے کون مغضوب اور ضالین، یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مغضوب اور ضالین. مغضوب جس پہ غضب کیا گیا، مغضوب وہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے جو گمراہ ہوئے، اور گمراہ جو بالکل پڑ جاہل جن کو پتہ ہی نہیں تھا علم کا. جی، مغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، اس کے بغیر ہی عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے، جو جانتے ہی نہیں
صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں مضالین، ان دونوں کا فرق آپ نے یاد رکھنا۔ اچھا مجھے کو بتائے گا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کون سی آیت ہمیں اس کا خلاصے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہدایت کی دعا ہے، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، الصراط المستقیم، صراط المستقیم، اس کا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اذان کی طرف، اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خلاصہ کون سی آیت ہے؟ نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، تو یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اذان کا خلاصہ آپا کیا ہے؟ آپا آپ نے وہ مالک کا کیا بتائے تھے؟ مالک کے دو ہے، ایک ملک الموت اور ایک مالک۔ مالکی کا مطلب ہے مالک ہے، اور مالک کا فرشتہ، ایک مالک اور ایک مالکی صبر اور زیر کا فرق۔ جی صبر و زیر کا فرق۔ اچھا اذان کا خلاصہ بتائے گا؟ اذان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی خصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، یہ اس کا خلاصہ۔ اللہ اکبر کیا مطلب اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہے۔ کبیر کا مطلب بڑا اور اکبر سب سے بڑا۔ اشہدو کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا اشہدو کا اشارہ کس طرف کریں گے؟ اپنی طرف، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب جو، اب اس ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب کہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کے معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ الہ معنی ہے عبادت کی جائے، کوئی نہیں، کوئی پرستش کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جس کا حکم مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، یہ اس کے الہ کے 3 اہم معنی آپ نے یاد رکھنے۔ پھر اشہد ان، یہاں پر ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب بھی کہ، اور انا کا مطلب بھی کہ۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں کو واضح کیا گیا ہے، کا مطلب بھی کہ اور انا کا مطلب بھی کہ۔ اچھا مجھے کوئی انا کا مطلب بتائے؟ انا بے شک، بے شک، چلو زبردست، بے شک۔ اور ان کا مطلب اگر، ویری گڈ، زبردست، اگر، اور اس کے لیے ریفرنس ہے انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا، اللہ مصابری۔ ٹیبل میں ذرا ان چاروں کو آپ دیکھ لیں، ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب کہ، اور ان کا مطلب اگر، یہ آپ نے ان چاروں کا الگ الگ جو فرق ہے اس کو اور ان کا مفہوم اچھی طریقے سے یاد کر۔ انا، ان اور انا ایک ہی ہیں، ان اور الگ ہے۔ ان اور انا کا مطلب کہ، ان اگر، اور انا بے شک۔ حیا حیا کا مطلب آؤ، آؤ، حیا کا آؤ، آؤ طرف نماز۔ صلاۃ کے معنی نماز، الصلاۃ پراپر ناؤن۔ لا کا مطلب کال آ رہی نہیں، لا کا مطلب نہیں، نہیں، الہ کوئی معبود، کوئی معبود، اللہ کا مطلب سوائے، سوائے۔ ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نماز کے آخر میں وہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ دہرانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ مانتے ہو تو آ جاؤ، نہ بھی اگر ہم اس کی بڑائی کو نہ بھی مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑا ہی رہتا ہے۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی اذان کے کون سے کلمات میں یہ بات کہی، تو یہ آخری جو کلمات ہیں
نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر آ جاؤ، اور اگر نہ بھی مانے تو وہ تو بڑا ہے، اس کی بڑائی پر کوئی فرق نہیں رکھتا، ہم نہیں مانیں گے تمہارا اپنا نقصان۔ حی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کون سے الفاظ دہرائے جاتے ہیں؟ خیر من النوم۔ کتنی مرتبہ دہراتے ہیں؟ 2 مرتبہ۔ مرتبہ، ماشاءاللہ۔ اور النوم کا مطلب کون بتائے گا؟ نیند سے۔ اور خیر بہتر ہے، بہتر، من سے۔ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من سے، النوم نیند سے۔ اس کے علاوہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اقامت کے کچھ کہتے ہیں، اقامت میں کچھ اضافی الفاظ ہیں الصلاۃ کے بعد کی جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ۔ اچھا، یہ کتنی دفعہ دہراتے ہیں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ؟ 2 مرتبہ۔ 2 بار، ماشاءاللہ۔ قد کا مطلب کھڑی ہو چکی ہے، کھڑی ہوگی، البتہ، قامت کا مطلب کون بتائے گا؟ کھڑی ہوگی، کھڑے ہونا، کھڑی ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قد البتہ قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز۔ بہت اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ باہر سے مسجد میں آئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو مسجد میں آ چکے ہیں، کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو اعلان ہے کہ باپ جماعت کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اذان باہر سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور اقامت جو مسجد میں موجود ان کو بلانے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار۔ وضو کے پہلے دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ اس بارے میں حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس دعا کے بارے میں؟ جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کے 8 دروازے اور پھر یہ دعا کرے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس بات کو آپ نے یاد، یہ تقریباً وہی سارے الفاظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وحدہ کا مطلب وہ اکیلا ہے، اور لا شریکہ، نہیں کوئی شریک تیرا۔ وحدانیت کا اقرار ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں وعدہ وہ اکیلا، تیسری بات لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کہ ہم شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے عبدہ کا مطلب کیا ہے؟ بندہ، اللہ کا بندہ، اب بندہ ہوں اس کا، اس کے بندے، اب بندہ اور ہوں اس کا، اس کے بندے، اور وا رسول ہوں، اور اس کا رسول، اس کے رسول، تین ہے ٹکڑے، اور اس کے رسول، ماشاءاللہ، وا رسول اور رسول ہو۔ اس کا مجھے بتائیں کہ اب تو ہو کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا کیا، اس کی کیا تاکہ اس کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ پہلی جو تھی انہوں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جی، تو یہ واضح کر دیا کہ شرک کا دروازہ بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلمات دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک بالکل ممنوع ہے، اور محمد اللہ کے بندے ہیں۔ اگلی دعا اللہم اجعلنی من التوابین، اجعلنی اس کا مطلب ہے بنا دے مجھے، بنا دے مجھے، اے اللہ، اے اللہ، اور توابین خوب توبہ کرنے والوں میں، تواب کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، خوب توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے، بار بار توبہ کرنے والا۔ اجعلنی اس کے ٹکڑے کریں، اجعلنی
तीन टुकड़े और तीन वाह टुकड़े और बना दे माशाल्लाह, 3 टुकड़े होंगे। वाह और इजअल बना दे नी मुझे, इसके 3 टुकड़े होंगे। मुतताहिरीन पाक साफ रखने वालों में, पाक साफ रहने वालों में से। समझिए। अल्लाहुम्मा के टुकड़े बताएं जरा। ए अल्लाह। जी सिस्टर, मेरा ख्याल है आप इसको सिस्टर नीला इज शायद वेटिंग, आप प्रॉब्ली अभी उनका है। जी सर फिनिश करें सिस्टर, बहुत ज्यादा टाइम लेगी। के लिए सिस्टर अनीला जो है वो कंटिन्यू करेंगी। जज़ाकल्लाह खैर। दूसरी भी निकालो ना, दूसरी वो जो वो पीछे से वो निकालो। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें सारे, म्यूट कर लें, म्यूट सॉरी। था मेरा तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेयर हो रही है? नहीं अभी नहीं हुई। शेयर करें, शेयर। एक सेकंड। जी हो गई शेयर? हो रही अभी हो रही स्टार्ट। यस हो गई है। ये ओके स्टार्ट करें। जी अब हम शुरू करते हैं। रुकू के बाद और सजदे की जो दुआएं हैं उन पे आते हैं। इसमें है सुभाना। सुभाना का मतलब है पाक है। रब्बी। रब्बी का मतलब क्या हुआ? मेरा रब। मेरा रब। फिर बी कौन से वाला है? ये मेरा, मेरी तरफ वाला रब। मेरा रब। अजीम बहुत इस जिक्र में क्या कितनी बातें आ रही हैं? 4 बातें आ रही है। 4 बातें आ रही हैं। वेरी गुड। अच्छा ये देखेंगे समी अल्लाह का हम ब्रेक करेंगे। यानी समी का मतलब क्या है? सुन ली अल्लाह ने। लीमन के दो टुकड़े। लीमन जिसने और ली के लिए। और लिए जिसने। हमीदाहू के कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। हमदहू एक हमारी तारीफ और उसकी ये वो वाला हो गया वाला। ठीक है। उसकी रुकू से उठने के बाद की दुआ है रब्बना हमारे रब। खाना के 2 टुकड़े हैं, एक रब और ना। ए हमारे रब। बहुत अच्छा। वाला का कितने होंगे? 3 टुकड़े। वाला का के 3 टुकड़े। वाह और ला लिए का के तेरे। वेरी गुड। वाला का अल्हम्दु वाला कल हमदु। इसका क्या मतलब है? हर किस्म की तारीफ तेरे लिए। एक और जिक्र है। समी अल्लाहु लिमन हमीदहु रब्बना वलकल हम्दु मिल्लस समावात। इसमें मिलआ का मतलब क्या है? भर कर। आसमान। अर्ज़ का मतलब है? जमीन। बैनहुमा के टुकड़े करेंगे। 2 बैनहुमा 3 टुकड़े। बैनहुमा 2 टुकड़े। बैना में दरमियान। जी इनके दरमियान में 2 टुकड़े होंगे। आगे चलते हैं।
वमिल आ और भरकर मा का मतलब क्या है? जो तू चाहे, जो शीता तू चाहे, होगा तू चाहे, मिन शई चीज में से आदू हर चीज इसके इसके बाद। बिल्कुल सही। अब हम सजदे की तरफ आ जाते हैं। सजदे की तस्वीर में क्या है? वही सुबहाना का मतलब पढ़ चुके हैं, रब्बी का मतलब पढ़ चुके हैं, अल्लाह का मतलब सबसे बुलंद, सबसे ऊपर, सबसे बुलंद। तो सजदे की हालत कौन सी हालत होती है असल में? अल्लाह से बहुत करीब होते हैं उस वक्त हम, बहुत अल्लाह मुकम्मल से सबसे करीब हालत होती है। आज हम देखते हैं तशहुद की तरफ आ जाते हैं। अत्तहियातु, अत्तहियात, अत्तहियात कौन सी बातें? सभी कौली इबादतें, जिक्र तिलावत जो जुबान से करते हैं कुली बातें, जैसे अच्छी बात करना, तिलावत करना, नमाज पढ़ना। जी, लिल्लाही, लिल्लाही के टुकड़े करेंगे? दो अल्लाह ही के लिए, अल्लाह और लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह और ली, ली, लिए, लिए, अल्लाह के, अल्लाह, अल्लाह के लिए। वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, नमाज, रोजा, हज, मदद, तालीम, दावत, तबलीग। बातें में नमाज, रोजा और तरबियत वगैरह सर आ जाता है। वत्तय्यिबातु सभी माली इबादतें, पाकीज़ा इबादतें, जो माली माल, बातों सदका, में ज़कात आ जाता है। सदका, ज़कात, सही। उसके बाद क्या है? अस्सलामु, अस्सलामु का मतलब सलाम हो, अलैका, सलाम हो आप आप पर, ये वाला का आप पर। अय्युहन नबिय्यु, अय्यु नबी अन्नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वरहमतुल्लाह और रहमतुल्लाह की और उसकी बरकत हो उसकी आप। सलाम, सलाम अलैना, हम पर हम पर और अल्लाह चार उंगलियां अपनी नहीं पर, ना हम पर, हम पर आला और ऊपर। इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों के, सालिहीन, नेकोकार, नेक, मुत्तकी, परहेज़गार। इनाम किन लोगों पर है? इनाम याफ्ता लोग कौन कौन से हैं? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। ये है इनाम याफ्ता जो लोग हैं। इसके बाद है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब क्या है? और ला इलाहा नहीं कोई माबूद, कोई माबूद इल्ला, यहाँ अल्लाह का अल्लाह रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैडम ये देखें ना, चैट में बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, सब लोग बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसका इतना फायदा नहीं है। तो इसका कोई तरीका करें, आप बताएं तो लोग समझे, कोई एक जवाब दे या चंद, तो इस तरह से समझ में आए तो फिर फायदा नहीं है। शुक्रिया। समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है। चले मैडम आगे आप चले ना, कंटिन्यू करें, फिर करते हैं नेक्स्ट सेशन में भी करते हैं, म्यूट कर देते हैं सारा, टाइम थोड़ा सबको शॉर्ट है। समझ आ रही है वैसे। व अशहदु और अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देती हूँ। अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, अब्दुहु के बंदे हैं। के बंदे, अब्द दो टुकड़े हैं, अब्द बंदा हूँ उसके। सही। व रसूलुहु और रसूल कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े, 3 होंगे। वाओ रसूल हूँ, रसूल और हूँ। वेरी गुड। इसके बाद हम चलेंगे। मैम यहाँ अन्ना का बेशक आएगा कि के ही आएगा? इन्ना का बेशक है,
इन्ना का बेशक है, ये अन्ना है मतलब के। मतलब है के। जी अन और अन्ना का मतलब होता है कि इन्ना बेशक। ये आप ये इस टेबल को अच्छी तरह याद करें। अभी प्रीवियस सेशन में अभी जो अभी सिस्टर रुकैया करवा रही थी ना, तो उसमें इन्ना अन्ना इन ये सारा डिफरेंस सारा उसमें है। अब आगे चलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हम कैसे करते हैं? दरूद भेजकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करते हैं। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में। फिर हम आगे आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली का मतलब क्या है? रहमत भेज अला ऊपर मोहम्मद मोहम्मद अला और आल का मतलब क्या है? आल पर आल आते हैं पैरोकार मानने वाले। आल के दो आते हैं, खानदान, आपका खानदान और आपके मानने वाले, आपकी औलाद और अज़वाज और आपकी दुआ करने वाले मानने वाले। फिर उसके बाद है कमा का मतलब क्या है? जैसा के, जैसे सल्लैता रहमत भेजी तूने। हाँ, रहमत भेजी तूने। अला इब्राहीमा, इब्राहिम के ऊपर, इब्राहिम एग्जैक्ट नेम है। वाला और आल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। क्यों बेटा मैं क्लास में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात किस लिहाज से हो रही है कि आपको क्या दिया गया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बताए? आप तमाम उनके इमामत आपको दी गई थी। ऐसी दी गई थी। उसके बाद आपको जो है वो ऐसा मुकाम दिया गया कि सारे जितने भी वो हैं मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी आपको अब हैं वो नबियों में सबसे अफजल थे। और इस तरह जो है इन्ना का बेशक आप या तू, कितने टुकड़े होंगे? दो। हमीद तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद है अल्लाहुम्मा बारिक। बारिक का मतलब क्या है? बरकत अता फरमा। अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता। बरकत नाज़िल बारकता तूने बरकत भेजी। अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहिम पहले देख चुके हैं। हम देख चुके हैं। चलते हैं जो है दुआ की तरफ आते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें। आतीना के टुकड़े करेंगे दो होंगे, हमें और दे। आती और ना, दुनिया में। फी मतलब में, दुनिया मतलब दुनिया। और हसना का मतलब क्या है? भलाई। सही है। वाफिल आखिरा, और आखिरत में। हसना भलाई। फिर वही भलाई। वाकीना के मतलब टुकड़े करेंगे 3 टुकड़े होंगे। वाकीना, जाना हमें। 3 टुकड़े होंगे, वाह की और ना। 3 टुकड़े होंगे, बचा और ना हमें। और बचा हमें। जी बिल्कुल। अजाब से कौन से अजाब से? आज के अजाब से। नमाज के बाद पढ़ने की अहम दुआ है अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका। आइन्नी का मतलब क्या है? मदद फरमा मेरी। अब मेरे साथ क्लास लो। जिक्री का मतलब क्या है? अपने जिक्र पर, क्या आपके जिक्र पर? हाँ, तेरी याद करने पर। व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर। तेरा शुक्र करने पर। इबादती का, और अच्छी इबादत तेरी अच्छी इबादत करनी। तो इसमें कितनी बातों का जिक्र हो रहा है? शुक्र इबादत का, जिक्र का और इबादत का, 3 बातों का।
इसके बाद है सूरह इखलास है। इसका मतलब क्या है? कह दीजिए वो अल्लाहु वल्लाह अहद एक है, एक है। यकता एक। और समझ का मतलब क्या है? बेनियाज। लम का मतलब क्या है? नहीं, इसने किसी को जना लम का मतलब यलिद नहीं जना यलिद मजहूल इस सेंस में आता है। यूलद वो जना गया, वो जना गया। उसके बाद है वलम यकुल्लाहु नहीं है उसका, और नहीं है उसका। कुफुवन का मतलब है हमसर हमसर या हमकल्ला। अहद कोई। सूरह इखलास में अहद जो है वो दो जगह इस्तेमाल हुआ है, दोनों की जगह जो है वो डिफरेंट मैनी है इसका, इस चीज को याद रखिएगा। हम चलते हैं सिस्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, अब जिससे पूछा जाएगा काइंडली वो बोलिएगा, जरा काइंडली मेहरबानी कीजिएगा, जिससे पूछेंगे हाई साहब उन्हीं को ही बोलिएगा और अपने आप को म्यूट रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम ग्रामर के पहले 6 असबाब की दोहराई करेंगे। टाइम कम होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी आपको ये दोहरा सकूं। इसम, फेल, हरफ ये आप जानते हैं। जमा बनाने के कई तरीके, उनमें से एक तरीका ये है इसम के आखिर में वाव नून या फिर या नून लगाते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमन से मुस्लिमीना, मुस्लिमीन से मुस्लिमीना। याद रखने की यहाँ यही एक बात है कि दो ज़बर या दो ज़ेर दोनों के साथ जमा बनाते हुए या नून लगाते हैं। मोनस की जमा बनाने का तरीका ये है कि जो मोनस की इलामत यानी गोल ते है उसको हटा के अलिफ ते लगा देते हैं। और दो पेश वाले इसम के लिए दो पेश, और जिसके साथ दो ज़बर या दो ज़ेर हो दोनों हालतों में दो ज़ेर आता है। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मोमिनातुन से मोमिनातुन, सालिहातुन से सालिहातुन, यानी दो पेश लगा दिए जमा में भी। और दो ज़बर वाली हालतें देखिए, मुस्लिमातन से मुस्लिमातीन, मुस्लिमातीन से मुस्लिमातीन, दो ज़बर दो ज़ेर दोनों के लिए दो ज़ेर आते हैं। नए अल्फाज ये सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल होते हैं। हल और नाम। हल के मैनी होते हैं क्या, नाम के मैनी होते हैं जवाब। आइए इसकी प्रैक्टिस करें। कौन ये सवाल जवाब कराएगा, प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस, चलिए जारिफिया आप जवाब दिया। हल हुआ मुस्लिम, क्या जवाब होगा? हुआ मुस्लिम। गुड। हल हुआ मुस्लिमून, नाम हुआ मुस्लिम। हल अंता मुस्लिम, दूसरी दफा नाम आना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नाहनु मुस्लिम। नहनु मुस्लिमून। अब तक आप चुप क्यों भाई? कई लफ्ज में एक होता है मन, मन के मैंने होता है कौन। तो इसके एक सवाल जवाब कौन करेगा? यस, समिया अब्दुल वहीद, प्लीज आप जवाब दीजिए। मन हुआ, अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। समिया अब्दुल वहीद, यस। मन हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता, हुआ मुस्लिम, अना मुस्लिम। उसे जवाब देना चाहिए।
भाई साहब उसको जवाब देने दें, आप अपना म्यूट करके अपने दोहराते रहें। मन अंतु, नहनु मुस्लिमून। गुड। ये कुछ अल्फाज हैं, हरूफ इन्हें कहते हैं, ये जब किसी के साथ जोड़ते हैं ज़मीर के साथ तो उसके मायने में ये इजाफा हो जाता है। वा के मायने और, फा के मायने बस, और ये आ के मायने होते हैं क्या। हल की तरह ये भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। आइए इसकी मशक करें। ये टेबल कौन दोहराएगा भाई? ये सईद साहब आप दोहराइए। वो वाह हुआ का तर्जुमा करें और इशारा भी करें। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सही, हेलो, आवाज आ रही है? वाह हुआ क्या मायने है? वाह हुआ और वो, वाह हूँ और वो सब, वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नाहनु और हम सब। यानी वाव का तर्जुमा सिर्फ इजाफा हो जाता है। इसी तरह फा के साथ होगा। कौन इसे कराएगा? हाँ जी, यस, सारा यूसुफ प्लीज आप कराइए। बताइए क्या तर्जुमा है? बस वो, गुड, वाहुम बस वो सब, वेरी गुड, फांता बस आप, फाना Good. बस मैं, फांतुम Good. बस आप सब, फनहनु बस हम सब। एक्सीलेंट। चलिए जी, अब अगला जो है टेबल देखते हैं। ये है ज़मारे मुत्तसिल, जुड़ के आने वाले जो है ज़मार। इनके मायने में सिर्फ ये फर्क आता है कि ये ताल्लुक को शो करते हैं। जैसे होवा उसका, हुम उन सब का आपका, या ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। आइए इसकी मशक करें। कौन ये टेबल में स्टार्ट कराएगा जी? बेही का, मरियम रियाज प्लीज आप कराइए। बेही का, बेही तर्जुमा कीजिए। मरियम रियाज अनम्यूट कीजिए और तर्जुमा कीजिए बेही का। ओके, वो नहीं कर पा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। कीजिए बेही, बी उससे, बी हिम उन सब से, बी का आप से, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हम सब से। अगला भी आप कराइए। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। ये तीसरा भी आप कराइए प्लीज। इलाही जी, अलैहि इस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। एक्सीलेंट, यस। ये हमने देखा था मुज़क्कर के लिए हु या ही इस्तेमाल करते हैं, ही या और फी ही और अलैहि, लेकिन मुअन्नस के लिए हा का इस्तेमाल होता है। ये अब आपने याद रखना, बिहा, फीहा, अलैहा। ये सवाल जवाब कौन कराएगा भाई? ये तो लिखे हुए हैं, मैंने छुपाए भी नहीं। सारा मिर्जा प्लीज अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। दोहराइए। हलिल्लाहु रहीम बिही, नामल्लाहु रहीम बिही। गुड। हलिल्लाहु रहीम बिहिम, नामल्लाहु रहीम बिहिम। जबरदस्त। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। जबरदस्त हो गया। अब आते हैं हरूफे जर। हरूफे जर ये 3 हैं। ये कौन मुझे बताएगा भाई? ये ली जो है इसकी मिसाल क्या है? एग्जाम्पल चाहिए मुझे यहाँ। यस, ये मोहम्मद दाऊद ली का एग्जाम्पल दीजिए। याद करने के लिए क्या लफ्ज हम याद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मीन के लिए एग्जाम्पल दीजिए। मिनश शैतान। वेरी गुड। अन का एग्जाम्पल? रज़ी अल्लाहु अन्हा। रज़ियल्लाहु ताला तो आप सब मास्टर हो गए हो भाई। आ जाओ अभी टेबल करें। कौन करेगा? नया बंदा चाहिए। ये जिन्होंने कर लिया प्लीज छोड़ दें। नेक्स्ट, यस, आमना या अमीन है क्या? अमीन खान आप कराइए लहू का टेबल।
प्लीज। ईमन खान। लहू, लहू लिए उसके, लका आपके लिए, उसके लिए, लहुम लकुम उनके लिए, आपके लिए, लना हमारे लका लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना मेरे लिए। दूसरा टेबल कराइए मिनहू का, मिनहू। चले कोई और आ जाए भाई। नाजमा गफूर, चलिए आप कराइए मिनहू का टेबल। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। ये एक चीज आप सब जो है गौर से सुने, मैं हमेशा यही दोहराता हूँ, जब ये शद आ जाता है उसकी जब तक आप दो आवाजें नहीं निकालते आप गलती करते हैं। मिन्नी, 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 मिन्ना। चलिए अनहु का टेबल कराइए। अनहु, अनहु उसके, अनहु उन सब से, अन का आपसे, अन्नी, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना मुझसे। टाइम कम है इसलिए मैं अब आपके बाकी टेबल जो है वो क्विकली करा देता हूँ। बताने की चीज ये है, हुआ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हिया मोनेस के लिए होता है। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमात, हुआ मोमिन, हिया मोमिनातुन, हुआ सालिह, हिया सालिहात, हुआ साबिर, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिर, हिया शाकिरातुन। टाइम कम है नहीं वरना मैं ये आपसे करवाता, पता चल जाता किस किस को याद है। रब्बोहू, रब्बोहा, दीनोहू, दीनोहा, किताबोहू, किताबोहा, रसूलोहू, रसूलोहा, इस्मोहू, इस्मोहा। यानी मोनस के लिए हा लगा देते हैं। माँ के मैनी क्या है याद रखिए, दो मैनी होते हैं। एक तो ये है क्या, माँ दीनोहू उसका दीन क्या है, दीनोहुल इस्लाम उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनोहुम उन सब का दीन क्या है, दीनोहुल इस्लाम उन सब का दीन इस्लाम है। माँ दीनों का आपका दीन क्या है, दीनियल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनोकुम आप सबका दीन क्या है, दीन नल इस्लाम हमारा दीन जो है वो इस्लाम है। दूसरा मैनी जो है का माँ के होते हैं नहीं, पहला था का वो हमने की। अब ये देखिए यहाँ माँ के मैनी नहीं है, हम कैसे करते हैं, हल इलाहे देना, क्या उस पर कोई कर्ज है, माँ अलह देना नहीं उस पर कोई कर्ज, हल अलहम देना क्या उन सब पे कोई कर्ज है, माँ अलहम देना उन सब पे कोई कर्ज नहीं। तो माँ के दो मैनी क्या हुए, क्या और नहीं। अल्लाह से दुआ है वो हमें सबको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। So I'm sorry, brother, I took also few minutes more. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर है ये अभी रिवील करवा रहे थे, इला मा इंदा, इला इसका जो रेफरेंस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्ना कम लिया का इंदा का, इसको हम इनके साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अगर कोई काइंडली करवाना चाहे तो ये मेरे साथ इसको टेबल पर वाइज करवा लें। इलैही सर मैं उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास। चलिए ब्रदर ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लें। ये इला इला इलाही, इसके आपने पढ़ लिया माना इंदा का, ये मैं आपको बता दूं, इलाज है उसकी तरफ, माना हमारे साथ, इंदा का आपके पास।
ठीक है, इसके आंसर क्वेश्चन है, तो इसके मैं जो हैंड रेज करें काइंडली मैं उनसे पूछूंगा, वरना वो खुद से वो ना करें। हल्लाहु मा'a, जी सारा यूसुफ, हल्लाहु मा'a, जी सर क्या क्वेश्चन किया है? हल्लाहु मा'a, स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप स्क्रीन पे हैं। नाम अल्लाहु माअहू। हल्लाहु मा'हुम, नाम अल्लाह माहुम। जी सिस्टर जाफिया, आप बताएं हल्लाहु मा'a का। नाम अल्लाहु माहुम। माई माई। हल्लाहु मा'a, हल्लाहु माकुम। नाम अल्लाह माअना। माना, गुड हो गए। अब अपने आप को म्यूट करें। ला मिन अन बी फी इला, इला, ये हमने सारे हरूफ जर पढ़े, ये ज़हन में काइंडली रख लीजिएगा। मा और इंदा हरूफ जर नहीं है, ये इसम है। ये अक्सर उसमें क्विज में आ जाता है, तो फिर थोड़े से लोग परेशान होते हैं। मा और इंदा हरूफ हैं, हरूफ जर नहीं है। ठीक है, हर पान का हरूफ जर अलग होता है। कभी हरूफ जर अरबी में है मगर दूसरी ज़बान में नहीं होता, कभी हरूफ जर अरबी में नहीं होता बल्कि दूसरी ज़बान में होता है। हरूफ जर बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे लकड़ी से या को मारा, लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, इससे मायने चेंज हो जाते हैं। हर ज़बान का हर्फ जर अलग होता है। अमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। अमनतु में बी, अमनतु बिल्लाहि में बी हरूफ जर है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया पर वो है हरूफ जर है। आई बिलीव इन अल्लाह, इन जो है ये हरूफ जर है। कभी हरूफ जर अरबी में मगर दूसरी ज़बान में नहीं होते। ये थोड़ा सा काइंडली आपने ज़हन में रख। ठीक है, फिर ली जो है हरूफ जर है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। फॉरगिव मी, पर हमनी, रहम कर मुझ पर, जबकि अरबी में नहीं है, उर्दू में है और उसमें भी है इंग्लिश में। अच्छा, हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं। ठीक है, जैसे हाजा, हाजा ये, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, हाजे ही ये, हाउलाइका ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। अच्छा, इसका कोई आंसर क्वेश्चन देना चाहे? मन हाजा, मिस्टर दाऊद। हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। हाँ जी, हाउलाई के साथ मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिमून ही आएगा। मन जालिका, जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, उलाइकल मुस्लिमून। उलाइका मुस्लिमून। जमा के साथ जुमा आएगा, वाहिद के साथ वाहिद आएगा। खाने अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज ब्रदर। हाजे की जो हाजा है ये मुज़क्कर है, हाजे ही मुन्नस है। ठीक है, इसी तरह जालिका वो, तिल का वो औरत, यानी कि फीमेल के लिए यूज होगा। हाजे ही ये, हाजे ही ये, हाउलाई का वो सब, तिल का वो, उलाई का वो, दोनों की जो प्लूरल है वो सेम है। अच्छा, फेल की तीन किस्में। फेल माजी, फेल माजी हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट, वो काम जो हो चुका है। फेल मुदारे और अमर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, टाइम शॉर्ट होने की वजह से तो मैं आगे समझाइज कर रहा हूँ। इसका सेट है पहला फाला, फतह, जाला। बेसिकली इसके हमने 4 सेट पढ़े। फतह, नसरा, ज़रबा, समिया। फतह, नसरा, ज़रबा, समिया। अब इसका एक छोटा सा फ्रेजेस है, वो इसको काइंडली आप याद रखें। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समिया। ठीक है, अब इसका काइंडली को टेबल कराए। फाला, फाला का तो मैं ये आईफोन सिस्टर हैं, ये सैयद हैं, कौन, ये जरा काइंडली करवा दें। फाला सर, फाला उसने किया, जी, फालू सबने किया, फालता तूने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया। जी, गुड हो गया। यानी ब्रदर एंड सिस्टर, इसका ये सिस्टर समिया, समिया। जाला के इस पे टेबल करा दे, जाला, फाला की तरह ये जाला। सिस्टर समिया आप कराना चाहेंगे? जाला, जाला। सर मैं कर जी जी, सिस्टर समिया को मैंने कहा, ये समिया है यहाँ पे। सर सिस्टर आप करा दें। जी हम कर सकते हैं। जी जी, करें करें। जाला,
जाला उसने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाल तू जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सबने बनाया, जालना मैंने बनाया, हम सबने बनाया। जी गुड हो गया। अगर इसका मैं आंसर क्वेश्चन करूं, हल जाला, हल जाला, हल नअम जाला, हल जालू, नअम जालू। चलिए ठीक है, आप म्यूट कर ले। कोई और ब्रदर मोहम्मद दाऊद, हल जालता, नअम जालतू, जालतू, हल जालतुम, नअम जालना, जालना। गुड हो गया ब्रदर। ठीक है, जरा काइंडली अपने आप को सर ये मैं करूं? जी जी म्यूट करें। ये हो गया ना, देखिए ये हल जाला ये हो चुका है, जाला का टेबल हमने वैसे कर लिया, हल जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतू भी हमने कर दिया। इसी तरह नसरा, खलाका, अबदा, ज़करा। नसरा उस मदद की उसने, खलाका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। अच्छा, नसरा का कोई टेबल करवा दे। ये मुकद्दस मुर्तजा कौन है, ये काइंडली करवा दे। नसरा उसने मदद की, नसरू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की। जी बहुत गुड हो गया। अच्छा, हमने ये पढ़ा हुआ जैदन और जैदुन, ये तो आपको पता ही होगा ना। जैदुन इसका जो ये सब्जेक्ट होता है और जैदन उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी को हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, नाम नसरन, हल नसरू जैदन, नाम नसरू जैदन। अब ये कोई और सिस्टर करवा लें। सारा यूसुफ, सारा यूसुफ, सारा यूसुफ। जी सर। हल नसर नसरता जैदन, नाम सर, मैं नसर करूं? नाम नसर तू जैदन, हल नसर तुम जैदन, नाम नसरना जैदन। तो एक चलिए सिस्टर सारा यूसुफ म्यूट कर लें अपने आप को। ये जैदन से जैदन ये हमने पढ़ लिया। हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, हल नसरू जैदन, नाम नसरू जैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसरतु जैदन, हल नसर तुम जैदन, नाम नसरना जैदन। ठीक है, ज़रबा उसने मारा, समिया उसने सुन लिया, अलीमा उसने जाना, अमीला उसने अमल किया। तो इसका जरा टेबल है। अच्छा, ज़रबा उसने मारा, ज़रब जो है उसको मारने को कहते हैं। अगर ज़रबा मसलन आ जाए तो उसने मिसाल बयान की, मिसाल बयान की। ठीक है, इसका जरा कोई काइंडली टेबल करवाएं। ये मनाहिल है, सिस्टम मनाहिल अपने आप को अनम्यूट करें। ज़रबा, ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रब तुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। बहुत गुड हो गया। अच्छा, इसके साथ भी हम ज़ैदन लगा के आंसर क्वेश्चन करते हैं। मनाहिल सिस्टर आप अपने आप को म्यूट करें। कुरतुल आइन, सिस्टर कुरतुल आइन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। अगर मैं पूछूं हल ज़रबा ज़ैदन, माँ ज़रबन ज़ैदन, माँ ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, माँ ज़रबन ज़ैदन। माँ ज़रबू ज़ैदन। ठीक हो गया सिस्टर। सिस्टर फरानाज अपने आप को म्यूट करने। कुरतुल आइन सिस्टर फरानाज। जी सर। जी सिस्टर हल यस ज़रब, सर। जी जी हल ज़रबता ज़ैदन, माँ ज़रब तू जैदन, ज़रबतू ज़ैदन, हल ज़रबतु ज़ैदन, माँ ज़रबना माँ जैदन। ज़रबना जैदन। हाँ जी, पहले बाकी ना बोला करें प्लीज। लेकिन जिस सिस्टर से पूछे, मुझे पता है आप लोगों को सारों को होते हैं, आप लोगों को सारे करना चाह रहे थे। देखिए हल ज़रबा ज़ैदन, माँ ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, माँ ज़रबू ज़ैदन, हल ज़रबता ज़ैदन, माँ ज़रबतू ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन, माँ ज़रबना ज़ैदन। समी अल्लाह सर लिमन हमिद। एक सवाल है कि हम माँ की जगह ला भी लगा सकते हैं या नहीं? नहीं सिस्टर, ला नहीं लगा सकते। माजी के साथ हमेशा माजी ही माँ ही आएगा। ये आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मेरे पास टाइम शार्ट है, आगे आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। समी अल्लाह लिमन हमीदा, ये समी अल्लाह का, समी का, समिया, समिया का काइंडली को टेबल करवाना चाहे जी। ये सिस्टर हैं गर्ल के नाम से, की गर्ल क्या है, ये जरा काइंडली करवा दें जी सिस्टर। समिया, समिया इसने बनाया, उसने सुना, समियो समया सुनना बेटा, समया सुनना, उसने सुना। समया इसने सुना, समय सुना। उन्होंने।
सामिउ इन सब ने सुना, सामेअत आपने सुना, सामेउत मैंने सुना, सामेतुम आप सब ने सुना, समीना ये ब्रदर मोहिद हैदर आप अपने आप को म्यूट करें और करवा दें प्लीज। हम ब्रदर मोहिद हैदर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समया इसने सुना, समया इन सब ने सुना, समयता आप सब ने सुना, आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आंसर क्वेश्चन के साथ अगर अल कुरान लगा दिया जाए, ठीक है, अल कुरान हो तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अल कुरान है, ठीक है। अगर मैं पूछूं हल समय अल कुरान, तो ये सिस्टर अमीन खान, ईमान खान जी सिस्टर। नाम कुरान, इसका आवाज नहीं आई। हल समय अल कुरान, नाम समीउल कुरान, हल समय अल कुरान, नाम समीउल कुरान। जी ब्रदर दाऊद आप बताएं, हल समय अल कुरान। नाम समिअतुल कुरान, नाम समीउल कुरान, हल समय तुम अल कुरान, नाम समिअल कुरान। जी बोलेगा म्यूट कर लें अपने आप को भी, ठीक है। हल समय ये खाली अगर समय का करना तो हल समय नाम समय, हल समय नाम समय, हल समय का नाम समय, हल समय तुम नाम समय नाम। देखिए अल कुरान ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और अल कुरान है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। हल समयउल कुरान नाम समयउल कुरान, हल समयउल कुरान नाम समयउल कुरान, हल समयतुल कुरान नाम समयतुल कुरान, हल समयतुमुल कुरान नाम समयनल कुरान। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, चलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुल्लाहु खैर। इंशाल्लाह आपकी अच्छी Allahumma wa bihamdina ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk। अभी सर काशिफ आपसे आंसर क्वेश्चन में कोई होंगे तो गलत कुछ सवाल है तो आपसे इंशाल्लाह लेते हैं। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या नहीं ताबू चाहिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह ब्रदर है। ओके जी, so we get back to जी आइए हम अपना सेशन शुरू करते हैं और इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आज की इस रिवीजन की क्लास में खुशामदीद। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम आधा सबक मुकम्मल कर चुके हैं और अब उसकी रिवीजन आज आप सब लोग कर रहे थे। तो रिवीजन के इस सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा कि सब लोग बड़ी मेहनत से और आप लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह सब अच्छे नंबर मिड क्विज में ले पाएंगे। ये जो सेशन अभी हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आप अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट करवा सकें, यानी आप पूरा मिड क्विज अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएं तो और ज़्यादा नंबर ले सकें। तो हम इस हवाले से आपके लिए कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। तो आइए हम
बढ़ते हैं इस तरफ। सो सबसे पहले अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रही आपने जो भी कमेंट लिखा है। ओ अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाइए और फिर आप कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारी सिस्टर बता रही हैं कि शायद शी इज़ नॉट वेल, आप सब दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो कमिंग बैक टू दी, अब दो मेजर चीज़ें इसमें आपसे डिस्कस करनी है। एक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अबाउट कि आप के क्विज का फॉर्मेट क्या होगा और आपने उसको कैसे करना है, और चंद इंस्ट्रक्शंस यानी क्विज का जो एकेडमिक फॉर्मेट होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और कुछ ये है कि आपने बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं उस हवाले से आपने क्या करना है। तो आपका काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है, आप लिंक्स को पहले से इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक पर ही चूंकि ये क्विज आएगा आपके पास तो यकीनन आपको ज़्यादा मसला उसमें नहीं पेश आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप उनका ख्याल रखें ताकि क्विज के दरमियान जो है आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना किया जाए, ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो ये है कि जी कल क्विज है, ये आप सबको पता है। क्विज का वक्त क्या होगा? क्विज इंशाल्लाह 7 बजे शुरू होगा, 7 o'clock, और 8 o'clock तक इसका टाइम होगा। लेकिन हम कोशिश, ये 60 मिनट्स में बड़े आसानी से किया जा सकता है क्विज। लिंक पर आएगा, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ये होमवर्क की तरह नहीं होता कि आप जब मर्जी अटेम्प्ट करें। ये जो टाइम होगा 7 to 8 का टाइम है, हम 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको दे देंगे तो 8:30 तक। सो 7 to 8:30 के दरमियान आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अगर उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा फिर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 7 o'clock ही लिंक शेयर होगा तो 7 बजे ही शुरू करेंगे आप, और फिर आप इसको, यानी जो क्लास का हमारा टाइम है वो 7 से 8 होता है, तो उसमें सिर्फ आधा घंटा आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं जी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन आपको वीडियो नजर आ रही है? वीडियो सर आपने स्क्रीन शेयर की ही नहीं है क्योंकि ये तो रनिंग लेक्चर या जो है डिस्कशन है। हाँ, अगर आप ये इसका मतलब, आपका मतलब स्क्रीन से स्लाइड है तो इसमें स्लाइड शेयर नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीजें, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया आपकी इस क्वेश्चन से कि हम इसको आइंदा राइटिंग में भी सामने लिख दिया करें। बहरहाल ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये जितनी बातें मैं आपसे करूंगा ये रिकॉर्ड भी हो रही हैं और इंशाल्लाह ग्रुप में भी हम ये इंस्ट्रक्शन आपको सारी भिजवा देंगे। पहली बात मैंने आपको बता दी, कल आपका क्विज है 7 से 8:30, यानी 90 मिनट आपको उसके लिए मिलेंगे। क्विज जो दोहराई आज करवाई है आपको, सबक नंबर 1 से लेके 11, उसमें से आ सकता है कुछ भी, और क्विज के नंबर 70 या 80 हो सकते हैं। अभी मैं उस पर हम थोड़ा सा काम करके आपको इंशाल्लाह ग्रुप में कल ये डाल दिया जाएगा। 70 या 80 नंबर होंगे। आपको पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए, यानी अगर 70 है तो 35, अगर 80 है तो 40 नंबर कम से कम मिनिमम टू पास द क्विज। तो मुझे बहुत यकीन है कि आप सब इससे ज्यादा नंबर लेंगे। एक अच्छे लेवल पे अगर आपकी तैयारी हो तो 40 मिनट्स, अगर आप आराम से सुकून से करेंगे तो 60 मिनट्स। उसके बावजूद हम आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 90 मिनट्स में ये क्विज हर सूरत हो जाएगा। अच्छी जल्दी ना कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तेजी से क्विज करने की कोशिश करते हैं कि शायद टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत अच्छा होता है, ऐसा मसला नहीं होता। तो फिर बाद में वो मुझसे झगड़ा भी करते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, AQTs के साथ लड़ाई करते हैं कि जी आपने वक्त बड़ा, आपने वो कम दिया हुआ था। 90 मिनट्स इज अ गुड टाइम। आप आराम से सुकून से उसको कर सकते हैं। कोई मतलब आप आइडियली क्या करना चाहिए, आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और करते जाएं। और अच्छा, शुरू में प्लीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल शुरू में आपने अपना नाम नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना उसके अंदर। उसका फायदा ये होगा कि अगर गलती से कहीं आपसे सबमिट दब जाए तो क्विज जो है ना सबमिट नहीं होगा। वो आपसे कहेगा पहले नाम लिखिए, तो आपने नाम बिल्कुल नहीं लिखना वहां पे, कोई एक डॉट भी नहीं डालना, क्योंकि डॉट भी वहां डालेंगे वो सबमिट हो जाता है। तो जो नाम वाला आता है, जो कंपलसरी होता है लिखना, वो शुरू में नहीं लिखना, वो आखिर में लिखना है। जब आपने सबमिट करना है उस वक्त पूरा नाम लिखे, और पूरा नाम लिखना है प्लीज। फर्स्ट नेम या कम नाम नहीं लिखना, फुल नेम लिखा करें, उससे हमारे पास रिकॉर्ड में वो सही रहता है। हर होमवर्क में क्विज के अंदर अपना फुल नाम लिखा करें।
अच्छा, ये हो गई ये बातें। कोई टेक्निकल इशू हो जाए, आपको पहले 30 मिनट्स दिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने मोबाइल को, जो भी चीज आपने यूज करनी है उसको चार्ज कर लें पहले से। अगर लैपटॉप भी है चार्जिंग कर लें, लाइट जाने का मसला हो जाए। कल के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप अपनी रखें। देखिए क्लास मिस होती है तो वो तो आप बाद में भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, होमवर्क भी मिस होता है लिंक आपका, तो आप बाद में पूरा हफ्ता होता है 5 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्विज आपको इसी टाइम के दरमियान करना है 7 to 8:30, इसलिए उसकी पूरी तैयारी करके रखें। अच्छा, फिर आगे है कि जी आपको अगर पढ़ने में मसला हो, खासतौर पे जो लोग मोबाइल फोन के ऊपर कर रहे होते हैं, तो क्विज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को, जब टच स्क्रीन है, यूं उसको 2 उंगलियों से जब टच करके बड़ा छोटा करें, यानी एनलार्ज करें, एक्सपैंड करें, तो वो बड़ा भी हो जाता है ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो, और फिर छोटा भी हो जाता है। एक बात। एक और बात ये है, जो एक होमवर्क में भी कुछ लोगों को मसला हुआ, हमारी वो शुरू में नहीं पता था, अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा मोबाइल पर, खासतौर पे, लैपटॉप पे तो ये इश्यूज नहीं आते, टैब के ऊपर भी हो सकता है आप आए, तो आप यूं कर लें मोबाइल को टेक्स्ट, और ये याद रखें आपके मोबाइल पर वो स्क्रीन के दोनों ऑप्शन लगे हों कि वो स्क्रीन शिफ्ट हो जाए लैंडस्केप में, तो जो आगे ऑप्शन होंगे वो भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा सवाल ठीक तरह से नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आपने यकीनन पूरे ख्याल से इसका ख्याल रखना है कि फॉन्ट पढ़ने के लिए, उसको मोड़ने के लिए, ताकि आपके कोई नंबर इस वजह से जो है वो जाया ना हो। मैंने जैसा पहले कहा कि बिल्कुल क्विज वैसे ही जैसे आपको होमवर्क का लिंक भेजा जाता है, ऐसे ही आपको क्विज का लिंक भेजा जाएगा, लेकिन इसका चूंकि नंबर ज्यादा है, इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, इसलिए इस पर वक्त भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, आप अपनी एक्सरसाइज के लिए, आप रिवीजन तो कर रहे हैं, आप वर्कबुक को भी जरूर देखिए, हर जरिए से वीडियोस को देखिए, उस तरह से आप तैयारी करने की कोशिश कीजिए। क्विज के दरमियान आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज क्विज के दरमियान, होमवर्क में तो हमने आपको इजाजत दी हुई ना, आप किताब से पढ़ लें, पीडीएफ फाइल से पढ़ लें, वीडियो से देख लें। क्विज के दरमियान आप किसी किताब से नहीं पढ़ सकते, ना ही आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, ना आप किसी वीडियो को देख सकते हैं, ना आप पीडीएफ से देख सकते हैं। और ये प्लीज याद रखें कि ये हम इसलिए नहीं कह रहे कोई नंबर हमने तो नहीं लेने, आप ही ने लेने, कि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो ना, कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, आपने कितना अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है, और असल में तो अल्लाह में देख रहा होगा। लिहाजा मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी इस दरमियान किताब, पीडीएफ फाइल, वीडियो, उससे पहले 7 बजे से पहले तक आप जितना मर्जी देखें, जहां से मर्जी देखें, जहां से मर्जी तैयारी करें। और फिर अगर क्विज के दरमियान आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो जाए, कोई टेक्निकल इशू आ जाए, आई विल बी अवेलेबल, हमारे QTs अवेलेबल होंगे। आइडियली आप मुझे डायरेक्ट सेंड करें ताकि आपका मसले को उसी वक्त हल किया जा सके। नमाज के सिर्फ 10 मिनट के अलावा मैं तकरीबन पूरा टाइम अवेलेबल होऊंगा मोबाइल के ऊपर, जहां व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है कि अगर आपका कोई सवाल आए तो मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकूं। अच्छा, सिस्टर जरफिया कहती है हम होमवर्क के दरमियान भी नहीं देखते कभी। नहीं सिस्टर जरफिया, आप होमवर्क के दरमियान देख सकते हो, और जरूर देखिए अगर कहीं फंस जाएं। बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी है उसकी। वहां फिलॉसफी ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आप कोर्स को अच्छा सीखें। यहाँ है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। होमवर्क करते हुए हमने ये शुरू में भी आपको बताया था, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, रुक जाएं, आप पीडीएफ से देखें, बुक से देखें, ताकि आप कंसल्ट करें और आपके वो जहन में पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट। वीडियो देखें, जहां से मर्जी देखें, और होमवर्क में पूरे नंबर लें, अच्छी बात है, ताकि आपके ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आए। सो सिर्फ क्विज के दरमियान ऐसा नहीं करें। तो ये बातें तो थी टेक्निकल इश्यूज, और ये सारी, ये इंशाल्लाह आपको हम ग्रुप में भी कोशिश करेंगे आपको राइट अप में डल जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कुछ देखा जा रहा है कि वो जो आपको आसान क्वेश्चन मिले और मुश्किल ना हो, तो 60 हो सकते हैं, 71 तक हो सकते हैं। 70 मतलब नंबर पे डिपेंड करता है, अगर 80 हुए तो कोशिश होगी 70 के करीब नंबर्स हों, और कोई 60, 64 या 61 क्वेश्चन तो, क्योंकि बाज़ क्वेश्चंस में ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो थी जनरल बातें। अब जो है ना, क्विज किस फॉर्मेट का होगा? क्विज का फॉर्मेट तकरीबन जिस तरह आपको होमवर्क्स आते रहे हैं, तकरीबन वही फॉर्मेट होगा। लेकिन होमवर्क्स में होता ही है, चूंकि पॉइंट्स कम होते हैं, तो बाजू का एक फॉर्मेट एक होमवर्क में नहीं होता, किसी और होमवर्क में होता है। अब
जनरली क्या क्या होगी, नेचर क्या होगी क्वेश्चन की? नंबर 1, या तो आपको जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस जैसे आपको पूछा जाता है कि जी फलां चीज का खुलासा क्या है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, हर एक चीज के ऑप्शन दिए होंगे, तो ये तो हो गए आपके जनरल क्वेश्चन, इंटरप्रेटिव क्वेश्चन जो है। फिर आपको अरबिक टू अरबिक, अब आपका एक्सपीरियंस है, आप ये बोलचाल में कहते हैं ना मा दीनू का, तो आप कहते हैं दीनी अल इस्लाम, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, या हमने जो किए हैं बेसिकली तो वो वाले सारे आपको आएंगे जो आपने किए हैं कि हल दरब जैदन, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? नाम दरबा या ला दरबा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो इसलिए उस पर आपको वो ऑप्शन आराम से पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, गौर से पढ़ें, और जेर जबर से भी फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा हर चीज को, ठीक है? सर एक बात पूछनी है, ये अभी पूछ सकती हूँ या बाद में पूछ लूं? अब आप पूछ लीजिए जी। सर ये जैसे अभी आपने कहा माँ दराबा जैदुन, तो उसमें मैंने माँ की बजाय ला लिख दिया था, तो आप लोगों ने वो गलत हो गया जो पिछले इसमें था लास्ट वाले होमवर्क में क्वेश्चन। तो माँ और ला सेम नहीं है ना के हिसाब से? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। असल में अभी आपने माँ ही लिखना है जो हमने आपको बताया है। ये जो ला का कॉन्सेप्ट है आज ब्रदर इजाज भी आपको बता रहे थे, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो माजी हम यूज कर रहे हैं, चूंकि दाराबा हल दाराबा जैदन, तो आप मा दाराबा जैदन ही कहें, ठीक हो गया? अच्छा जी सिस्टर, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ये हो रही है, आपको मिल जाएगी। अच्छा, बात मैं क्या कर रहा था? अरेबिक टू अरेबिक। अच्छा, एक तो आपको अरेबिक टू अरेबिक इसी तरह जो एक्सप्रेशन आते रहे हैं उसके नीचे ऑप्शन होंगे, जो राइट है ऑप्शन वो आपने प्रेस करना होगा। इसी तरह उर्दू टू अरेबिक, उर्दू लिखी होगी और उसका उर्दू अरबी तर्जमा करना है। इसको जरा थोड़ी तवज्जो से कीजिएगा, प्लीज इशारे कर लीजिएगा, सिर्फ जहन से नहीं, इशारे हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं। क्या उसने मारा दाराबा, उसने मारा दाराबू, उन सब ने मारा। अब अगर वहां पे लिखा हुआ है तुमने मारा, तो आप क्या कहेंगे? तो आपने याद करना है, अच्छा दाराबा दाराबू दरबता, तुमने मारा, आपने मारा, ये उसके लिए होता है। दरब तू, मैंने मारा, दरब तुम सब ने मारा, दरब ना, हम सब। तो इशारा आपको दुरुस्त जवाब की तरफ लेके जाएगा। फिर अरबिक टू उर्दू, इसी तरह बिल्कुल जब अरबी का एक्सप्रेशन दिया उर्दू में करना हो, तब भी अगर इशारे वाला इशारा कर लें, अगर कुरान की कोई आयत है या कोई रेफरेंस एक्सप्रेशन है वो याद कर लें, जैसे इन्ना, इन, अन्ना, अन्ना, ये सारे हमने किए हुए हैं, या हरूफ भी किए हुए हैं। अच्छा, फिर आपको एक सिर्फ ऐसा टेक्निकल सवाल होता है, एक जो आप सब ने बहुत तवज्जो से करना है, जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। वो अभी होमवर्क में भी आप करते थे, जैसे कि इसम, फेल और हरफ में से कोई आपने फाइनल करना होता है कि दो एक जैसे होते हैं और एक को आपने ऑड वन आउट करना होता है, ऑड वन आउट। ये जरा थोड़ी सी सिर्फ सोच समझ के करने वाली चीज है। लेट्स से एक सवाल आया और उसमें लिखा हुआ था दाराबा, और लिखा हुआ था नसरतु, और लिखा हुआ था दुनिया, ठीक है? तो अब देखें, अब आप खुद जरा, आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें कौन सा मुख्तलिफ है? जी चलें, हमारे यहाँ लाइट चली गई। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बेटे इसकी लाइट जरा फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। जी, दुनिया, दुनिया मुख्तलिफ है। क्यों? दुनिया क्या है? ये क्या है? ये इसम है। तो हमने देखा कि अच्छा, तो आप इसी तरह पहले देख सकते हैं कि इनमें से इसम तो नहीं है, फेल तो नहीं है, हरफ तो नहीं है। पहले इस क्राइटेरिया पे लगा लें, दो हरफ है, एक इसम है, दो फेल है, एक इसम है। इस तरह हो सकता है दो इसम है, एक फेल है, तो उसको आप अलग कर देंगे। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, अगर वो ये नहीं होंगे तो ये हो सकता है कि वाहिद जमा हो, ठीक है? तो आपने जैसे अगर लिखा हुआ है, आपने देखा तो वो तीनों आपको फेल नजर आए, जैसे नसरा दाराबा और फतहना लिखा हुआ था।
अब कौन सा मुख्तलिफ करेंगे आप इसमें से बताएं? फतहना नसर दरबा, माशाल्लाह सिस्टर सायरा कह रही है फतहना। क्यों आपने फर्क किया इसको, क्या वजह बनी? जी वजह बताइए किस वजह से। हाँ ये प्लूरल था। अब ये हमने तीनों देखे कि तीनों फेल हैं, अब फर्क कैसे करें? तो हमने कहा अच्छा वाहिद जमा देख लेते हैं। दो वाहिद के थे, एक जमा का था, आपने उसको अलग कर दिया। तीसरा ये हो सकता है कि मुजक्कर और मोन्नस का फर्क हो। किसका फर्क हो? मुजक्कर और मोन्नस का फर्क हो। तो उस सूरत में आप दो मुजक्कर होंगे, एक मोन्नस है, आप उसको क्रॉस आउट कर दें। दो मोन्नस है, एक मुजक्कर है, उसको क्रॉस आउट कर दें। तो इस तरह से दो जमा भी हो सकते हैं, एक वाहिद है, उसको क्रॉस आउट कर दें। तो ये एक सिर्फ सवाल है जिस पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो से इसको करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया जी। तो ऑड वन आउट, रूट लेटर्स के ऊपर कोई एक आध सवाल हो सकता है जो आप जैसे देखते रहे हैं। शैतान का था शीन पा नून, और नासरा वगैरह का तो नून स्वाद रहा, आपको पता ही है। फ़अला का फ़ा आइन लाम, ये आपने देखे ही हैं। तो तकरीबन हमने हा मीम दाल हमद हमदा हामिदा, तो ये सारे ये एक दो सवाल इस पर हो सकते हैं। तो ये जी 8 डिफरेंट तरह के सवालात आपको मिड क्विज के अंदर आएंगे और आपने कोशिश करनी है कि आप उनको बड़े आराम से, तहम्मुल से, तसल्ली से करने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप जितने सवालात पूछना चाहते हैं पूछिए। अच्छा ये एक सिस्टर कह रही है कि कुछ मिड क्विज रह गए हैं और ये कुछ होमवर्क रह गए हैं और ये उसको मिड क्विज के बाद कर लें। जी बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं है, कर लीजिए। जी अभी ब्रदर वो ताहिर, खुले हुए हैं, आप कर जी। ब्रदर ताहिर अपने आप को अनम्यूट कर दें। Yeah, this one is better for live. जी सिस्टर मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैंने पूछना था कि कल जो क्विज एज इट इज टाइम पे होगा, जैसे क्लास का टाइम है, लेकिन यहाँ पे बहरीन में 7:30 बजे मतलब उधर के 7:30 यानी इधर के 5:30 बजे तो मगरिब की अजान होती है, मतलब उसमें मैक्सिमम 10 to 15 मिनट जाते हैं। तो वो टाइम क्या कंपनसेट होगा या मुझे ही फास्टली करना पड़ेगा? मैं उधर नमाज भी पढ़ूं और फास्टली थोड़ा इसको करूं आप ताकि बड़े उसमें आराम कवर से करूं। सिस्टर नमाज पढ़ें और 30 जी मिनट्स हमने पहले ही आपको कंपनसेशन के दे दिए एक्स्ट्रा। जी तो ठीक है ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा, आराम से हो जाएगा इस वक्त में। ठीक है जी ठीक है थैंक यू सो मच। जी ब्रदर ताहिर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी शुरू से। अब तो आ अच्छा रही ये है ना? तो बहुत, हाँ जी अब आ रही है। असल में आपका अच्छा माइक चलें, का इशू होगा ना, कोई इशू होगा आपकी हाँ, तरफ से। आपका माइक में गालिबन स्पीकर, सॉरी आपका चले स्पीकर। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं दोबारा सुन लूंगा जो मिस हुआ है। अभी इंशाल्लाह हम वीडियो इसकी लिंक डाल देते हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है जी सिस्टर फौजिया हसनैन। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आपने बताया फेल माजी के साथ ला नहीं लग सकता, सिर्फ मा लगेगा। तो जो इस दफा होमवर्क था उसमें मैंने लम लगाया था, लम भी तो डिड नॉट के लिए है, तो पास्ट में लम क्यों नहीं लग सकता? जैसे लम फ़अला उसने नहीं किया, तो इसकी क्या रीजन होगी? नहीं, हमने अभी तो आपको सिर्फ ला का बताया है, ऐसा कोई सवाल ही आपको नहीं किया गया, ना चीज पढ़ाई गई है, लिहाजा उन चीजों को अभी न छेड़ें और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ अभी ज़हन में रख लें जो चीजें पढ़ाई गई है ना, पर्पस ये है, देखिए बहुत सी चीजें होंगी आगे होंगी, तो मकसद सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए जाए। बल्कि अगली क्लास जो आ रही है ना आपकी, ये मिड क्विज के फौरी बाद वाली, इसमें इंशाल्लाह ये मा ला ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, उस वक्त करेंगे। अभी मैं बताऊंगा मिड क्विज है, लोग इस तरफ परेशान होंगे, लिहाजा लेट्स जस्ट लीव इट हियर। जी जी सिक्स आगे जो है कौन है? सिस्टर हफ्सा। जी सिस्टर हफ्सा आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक सजेशन लेनी थी। अभी आपसे कोई पूछ रहा था कि होमवर्क नहीं किए हुए, उसका मेरे ख्याल से बस यही हल है, क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं, तो अगर साथ साथ वो होमवर्क कर लेंगी तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्होंने राय दी है कि आप कोशिश करें कि अगर होमवर्क रह गए थे तो वो सारे पूरे कर लें, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, और अगर कर लिए हुए हैं तो उनको निकाल के एक दफा रिव्यू कर लें, तब भी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, और बुक को भी देख लें तो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट हो जाएगी। बड़ी अच्छी राय दी है इन्होंने। जी सिस्टर जाफिया।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جیسا وہ آپ نے لاسٹ میں کہا فعل وہ جو فیلس ہے تو اس کے بارے میں کس طرح سے کوشچن پوچھ سکتا ہے؟ فعل 3 ٹکڑے اس کے نا فعل. نہیں اچھا فعلا آپ سے پوچھے جائیں گے. فعلا تو پورا ایک فعل ہے نا فعلا. ہاں فعل ہے ہاں مگر لاسٹ میں آپ نے کچھ ایکسپلین کیا وہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا. اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں سر. وہ مادے کا بتایا تھا مادے کا روٹ لیٹر. ہاں روٹ لیٹر اس کو جو ہے نا وہ فا عین لام ہے. اصل میں جو اصل حرف ہوتا ہے یہ 3 والے میں اس میں تو بہت آسان ہوتا ہے. عموماً جو ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں وہی جو ورب ہے پہلا ورب جو سب سے پہلا جیسے ہم یہاں کہتے ہیں فاتح فعلا داربا ناصرہ یہ سارے لیٹر بھی یہی ہیں تینوں. ناصرہ کا نون سامیہ کا سین میم عین تو اس میں تو ابھی مشکل نہیں ہے. وہ آگے جا کے آئے گا جب یہ روٹ لیٹر ڈھونڈنے ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی بردر طاہر آپ کو انمیوٹ کیا ہوا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو. سر میں نے عرض کرنی تھی کہ 7:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے تو مسجد میں اگر جانا ہو تو وہ پھر لیکچر تو اس میں مسئلہ بنتا ہے. جی اچھا ایسے ہے کہ آپ کل کوئز کے لیے دیکھیں 7 بجے شروع ہوگا تو آپ 20 منٹ اس کو کر لیں. ساتھ لے جائیں موبائل مسجد میں بیٹھ کے. اچھا ہے نیکی کا کام ہے. پھر آپ فرض پڑھیں اور باقی کا کوئز کر لیں اور وتر اور آپ ایسے بھی پڑھیں تو اچھی بات. اسی طرح ہی کر رہا ہوں لیکن وہ درمیان میں پھر وہ مسئلہ ذرا ڈسٹرب ہو جائے. ہینڈ فری لگا کے میں لے جاتا ہوں مسجد میں. بس وہ فرض ادا کرتا ہوں اور بعد میں آ جاتا ہوں. اینی وے سجیشن ہے کہ تھوڑا سا اگر عشاء کو اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اگر تو کائنڈلی. اصل میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم جب ٹائم بدلتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کورس کے اندر تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. ایک سٹینڈرڈ ٹائم سب کو پتا ہوتا ہے لوگ اس پر بیٹھتے ہیں تو وقت ہم بدل نہیں سکتے. عشاء میں ویسے بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اچھی. ویسے تو جماعت ہی سے پڑھنا اچھی بات ہے. بہترین یہی ہے چونکہ اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے اس لیے میں بھی یہ قربانی دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز جو ہے فرض اکثر بعد میں ادا کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اب چونکہ وقت یہ ہے آگے ہم انشاءاللہ ایک کورس شروع کر رہے ہیں جس کا ٹائم ہی عشاء کے بعد ہوگا لیٹ والا ہوگا. لیکن وہ بھی کچھ جگہوں پہ کچھ ملکوں میں عشاء کی نماز درمیان میں آ جاتی ہے اس کے باوجود. جی سر یہ لیکن ابھی سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹائم صحیح ہے اس کو بدلے نہیں. ہماری سب لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے نا اسی وقت کے اوپر تو اس لیے اس کو بدلنا پھر مسئلہ بن جاتا ہے. جی اور کوئی سوال ہے تو بتائیے جی ورنہ ہم یہ نغمہ غفور سر چیٹ میں پوچھ رہی ہیں سر آپ نے جو لاسٹ کوسچن سمجھایا تھا اسم فعل حرف والا وہی ریپیٹ کر دیں جس میں ایک کو سیپریٹ کرنا ہوگا. اچھا جی میں ریپیٹ کرتا ہوں. آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں سسٹر ناظمہ تو ان میوٹ کریں تاکہ میں آپ سے پوچھوں تو آسانی بھی ہو آپ کو کہ اگر میں کہوں فی اور فتحت اور علا یہ 3 آپشن ہیں تو آپ ان میں سے کس کو الگ کریں گی؟ جی سن نہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے میوٹ ہے. برادر اجاز یہ کائنڈلی ان کو ان میوٹ کیجیے. کر دیا سر کر دیے. جی سر جی کوسچن ریپیٹ کر دیجیے سر. جی میں کہہ رہا ہوں اگر ہو فی فتحت اور علا یہ 3 ہو تو آپ ان میں سے کس کو الگ کریں گی؟ فی فتحت اور علا جی فتحت. ویری گڈ. یہ اب آپ نے کیوں الگ کیا فتحت کو وجہ کیا ہے؟ سر میں نے تکا مارا مجھے نہیں سمجھا. نہیں یہ تکا آپ کے برین میں تھا ایسے نہیں لگ جاتے تکے. آپ کے برین نے انکانشیس میسج وہ ظاہر ہے کانشیسلی شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ بات کو سمجھ رہے. فتحت جو ہے نا یہ فعل میں سے افعال میں سے ہے. یم فعل فعلوا فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا یہ فعل ہے اور جو فی اور علا ہے یہ حرف ہے. یہ دونوں حرف جار ہیں تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ حرف 2 ایک جیسے ہیں اور یہ آڈ ون آؤٹ ہے
تو آپ نے فتحتو کو سلیکٹ کیا. بالکل یہی بات میں نے سمجھائی تھی سوری کہ ایک سوال ایسا ہے جس میں آڈ ون آؤٹ، یعنی آپ نے دیکھنا ہے اسم فعل حرف کی کرائیٹیریا پر، آپ نے دیکھنا ہے واحد جمع کے کرائیٹیریا پر اور مذکر مؤنث کے کرائیٹیریا پہ. تو جو ایک چیز الگ سی نظر آئے اس کو آپ ٹک کر دیں کہ یہ الگ ہے، وہی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ سر، اب سمجھ آ گئی. الحمدللہ. سر ایک میرا کوشچن ہے، جی ایک پوچھئے. تو ٹائم بالکل چینج نہ کریں کیونکہ ہمارا سڈنی کا تو پہلے ہی ڈے لائٹ سیونگ کی وجہ سے 1 گھنٹہ فارورڈ ہو گیا ہے. آپ ہی کی وجہ سے ہم ٹائم بالکل بدل نہیں رہے. شکریہ جزاک اللہ. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ روٹ ورڈز والا بول رہے ہیں کہ روٹ ورڈز آپ ورڈ دیں گے اور اس کے ہم نے سیپریٹ کرنے ہوں گے یا روٹ ورڈز دیے ہوں گے اس کا ورڈ بنانا ہوگا؟ اچھا ایسا کریں آپ اس کو بھول جائیں، ہم یہ سوال ہی نہیں دیتے. ہوا بھی تو میں آئل ٹرائی کہ اس کو نکال دیں. یہ ویسے بہت آسان ہے. دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. اگر ایک آدھا بھی گیا تو یہ جیسے لکھا ہوگا نون سواد رے، تو یہ کس کے روٹ لیٹر ہیں؟ نیچے لکھا ہوگا لیٹ سے نیچے لکھا نہیں، نیچے ہو سکتا ہے ناصرہ نہ لکھا ہو، نیچے لکھا ہو نصرتو فتحتو فعلتو. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیں کس کے روٹ لیٹر ہیں یہ نون سواد را؟ نصرتو. ویری گڈ، کیونکہ نصرتو کا روٹ جو پہلا ہے وہ ہے ناصرہ، تو نون سواد را ناصرہ روٹ لیٹر. تو روٹ لیٹر بنیادی طور پہ وہ بنیادی حروف ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ فعل بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح، آپ بالکل صحیح سمجھ گئے. پرفیکٹ جی. اور آپ پلیز آپ بڑی اسپیشل دعا سب کے لیے کیا کریں. آپ بڑے ایفرٹ کر کے اس کورس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور رات کے اس حصے میں بھی، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں آپ. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی ہاں، یہ ہماری ایک سسٹر بتا رہی ہیں کہ میں نے اس سوال کی خاطر پورے کورس کے روٹ لیٹر یاد کیے تھے. اچھی بات ہے، آپ کی تیاری اچھی ہوگی. جی انشاءاللہ سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. جی اور سوالات ہیں تو بردر اجازت لے لیں. M10 میٹ جی پوچھیں پلیز. یہ آپ نے روٹ لیٹر کا بتایا تو جب آپ کوشچن دیں گے تو اس میں انگلش میں روٹ لیٹر لکھا ہوگا یا کوئی اور زبان ہوگی اس میں؟ نہیں ایسے لکھا، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ سر. مادے جی، حروف کے مادے، حروف کے مادے. ٹھیک، بڑا اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. دیکھیں یہ بات چیزیں میں بالکل ذہن میں نہیں رکھتا. اچھا آپ نے پوچھ لیا. جی حروف کے مادے، جی جو لوگ سن رہے ہیں ذہن میں رکھیں اس کو. ٹھیک ہے، شکریہ. جی سسٹر حمیرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو نیچر آف کوسچن جو آپ نے کہا تھا کہ 8 ہیں، لیکن جو میں نے جاٹ ڈاؤن کیے وہ 6 ہیں سر. بس وہ پیسے لے جاؤ. ایک سمری عربک ٹو عربک، اردو ٹو عربک، عربک ٹو اردو، پھر یہ ٹیکنیکل کوسچن تھا سیپریٹ کا اور ایک روٹس. تو یہ 6 بنتے ہیں، لیکن آپ نے کہا یہ 8 ہیں، تو میں نے مس تو نہیں کر دیے کوئی؟ میں ایک منٹ لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. بیسیکلی 8 ہوتے ہیں اور وہ جنرلی یہی ہوں گے. کچھ سوالات ایسے ہوں گے ان کی نیچر، جیسے قرآنک ٹیکسٹ میں سے جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں، ایسے تو وہ بھی جنرل کویسچن میں آتے ہیں. تو جنرل کویسچن میں عموماً ایک اردو سے اردو ہی ایک ٹیکسٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن قرآنک ٹیکسٹ میں ہو تو اس کو ہم الگ کیٹیگری لیتے ہیں. بیسیکلی جنرل کویسچنس میں قرآنک ٹیکسٹ الگ ہے، اور عربک ٹو عربک خاص طور پہ یہ والی ہے جو یہ کانورسیشن والی ہے، اس کو ہم قرآنک ٹیکسٹ کنسیڈر نہیں کر رہے. تو اس لیے ایک یہ الگ ہو جاتی ہے ٹائپ. اسی طرح اگر قرآنک یہ دو، وہ بنیادی طور پر میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اگر قرآنک اردو ٹو عربک ہو تو وہ بھی الگ ٹائپ لیتے ہیں. تو وہ فال کرتی ہے اردو ٹو عربک اینڈ عربک ٹو اردو میں. یہ دو کیٹیگریز بیسیکلی ان کی دو بن جاتی ہیں. ایک ہم یہ کانورسیشن والے میں سے لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ قرآن میں سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جزاک اللہ. سر یہ سسٹر پوچھ رہی ہیں یلد کا مجہول یولد، اور مجہول بھی پلیز یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا. بیسیکلی مجہول پیسو وائس کو کہتے ہیں. یہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے پوچھا ہے. کچھ لوگوں نے یہ ویسے بھی پوچھا تھا
मजहूल किसको कहते हैं? मजहूल पैसिव वॉइस को। ठीक है जी। सर क्वेश्चन में उर्दू एंड इंग्लिश बोथ वर्ड्स के इस्तेमाल कीजिए, जैसे रूट वर्ड्स की उर्दू नहीं मालूम थी। नहीं, अब ये तो शायद मुमकिन नहीं होगा कि उसमें वो दोनों लिखे जाएं, वो मसला बन जाता है। अब आपको पता चल गया। इसके अलावा तो कोई ऐसा लफ्ज है नहीं जिसमें मसला होगा। मजहूल पैसिव है, इसको जरूर ज़हन में रख लें। और इसी तरह ये जो मादे, हरूफ के मादे जो हैं रूट लेटर्स कहलाते हैं जी। जी एनी अदर क्वेश्चन? आईफोन है जी, इनको भी ले लें। ये सिस्टर पूछें आईफोन। ये सिस्टर अनम्यूट कर लें। आपने फिर म्यूट कर लिया जी, अब बोलिए। जी आपका माइक अनम्यूट है, अब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। क्वेश्चंस में कोई चॉइस भी होगी या वैसे सारे का सारा करना होगा? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बिल्कुल टिपिकल क्लासरूम क्वेश्चन है। ये बच्चे पूछते हैं कि चॉइस भी होनी चाहिए। नहीं जी, इसमें चॉइस नहीं होगी, आपने सारे करने होंगे। पहले देखें इतनी चॉइस है, हर सवाल में आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो कितनी चॉइस है ना। देखें तो पेपर आपने पूरा करना है सारे का सारा। ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। सो मेरा ख्याल है अभी सवाल तकरीबन तमाम हो गए। आप व्हाट्सएप पर भी सवाल से कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं मिड क्विज से पहले। बिल्कुल सुकून से मजे से करें, ये जानकर करें कि आपने बहुत से एग्जाम दुनिया में दिए हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन पेपर्स हैं जो आप देने जा रहे हैं, और अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए आप ये दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको इसमें कामयाब भी करेगा और आप सबके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे को मदरसे उसका टाइम 6 से 8 है, तो मैं ये टेस्ट कल नहीं दे पाऊंगी, तो मैं आगे तो पढ़ सकूंगी। जी अगर खुदा न खास्ता आपसे टेस्ट छूट जाए तो आप कोर्स पूरा कर सकती हैं, और उसके लिए आप बाद में हमसे रब्ता कर लीजिएगा। एक दिन आपको करेगा जी, कोई मसला नहीं है, आप परेशान कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो समझ ना आए तो जरूर पूछिए, किसी से भी पूछिए, मुझसे पूछिए, सारे एक्यूटीज भी आपको हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं, इनसे भी पूछिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि कुल्लि मा खलक़। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपको इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। सर आज इस्लामाबाद में लाइट का शॉर्टफॉल हो गया है, कल ऐसा हुआ तो फिर? इस्लामाबाद में हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप मोबाइल चार्ज रखिएगा, आपको लिंक इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। देखें वो तो चार्जिंग के ऊपर है ना, आपने तो मोबाइल पे करना है, मैं तो लिंक आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए लाइट चली जाए कुछ भी हो, कल क्विज इंशाल्लाह होगा, आपने मोबाइल पर करना है। लैपटॉप चार्ज रखिए, अपने डिवाइसेस को पहले से चार्ज रखिए, एक ऑल्टरनेट रख लीजिए, घर में आजकल तकरीबन होती हैं सबके पास, तो उस पर कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।